rating all Gourmands that have been launched by Bath and Body Works till date. Hi guys, I'm Pradha and welcome to today's video. बहुत दिन से सोच रही थी, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि मैं जो Gourmand body mists हैं उनकी एक लिस्ट बनाऊं और उनको रेट करूं. That exactly was on my mind as well. And you know what? A funny thing happened in the morning. The candle in the background is pumpkin pecan waffles. लेकिन originally I wanted to burn Paris Cafe because I thought it'll go really well with my vibe today with, you know, the brown top and everything. Lekin it seems like I have lost a candle. I mean, how is it possible for a person to have lost a candle in the house itself? I genuinely, मैंने पता सारे में ढूंढा उस कैंडल को, मुझे वो नहीं मिली है. So I'll have to go look for it again. मतलब कोई कैंडल कैसे गुम कर सकता है? I will rate today all the body mists जो कि Gourmand कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, जो भी possibly उस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं. And I have narrowed it down to 12 fragrances. So without any more delays, let's quickly get into this video and roll the intro. Okay, so my least favorite and on number 12 is Frosted Coconut Snowball. ऐसा नहीं है कि ये फ्रेगरेंस कोई बुरी फ्रेगरेंस है, बट इट्स जस्ट दैट इट इज़ नॉट माई मोस्ट फेवरेट इन द इंटायर लॉट. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लाइट एंड iced kind of coconut fragrance and it's slightly sweet, not overly sweet. It's really beautiful. Still not there for me. But I have to say ये एक ऐसी coconut fragrance है. Bath and Body Works का coconut generally जब tropical fragrances के combination में आता है तो मुझ पे बहुत बुरा smell करता है और बहुत synthetic smell करता है. But this one surprisingly turns really well for me. It's really nice. It's really beautiful. लेकिन उस Gourmand लिस्ट में क्योंकि मुझे थोड़े विंटर फॉल लीनिंग Gourmands ज़्यादा पसंद हैं. I'm more of this true Gourmand loving person. So this fragrance is nice, but it is not on top of the list for me. It's like an okay fragrance. If I have it, it's okay. If I don't have it, I would not mind that. Then on number 11, surprisingly, we have Bright Christmas Morning. आप लोगों को लगेगा कि प्रथा को तो Bright Christmas Morning इतना ज़्यादा पसंद था. Why is she saying कि it is on number 11? The reason is कि मुझे genuinely ये DNA बहुत पसंद है fragrance का, लेकिन for some reason when I'm wearing it these days, I am not liking it that much. Don't know why. I really can't tell why. और एक और चीज़ जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगी कि कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी थी जैसे कोकोनट क्रेम पाई और आई थिंक रास्पबेरी जैम डोनट भी आया था एकदम इनिशियली जब Bath and Body Works इंडिया में लॉन्च हुआ था. They were very nice fragrances that were launched at that time, but I was not into Bath and Body Works back then. So I got onto Bath and Body Works from the next semi-annual sale, or probably I just bought 2 or 3 or 4 fragrances. I was not really that aware about it, so I missed out on those fragrances. So they are not going to be in that list. Right, Christmas Morning, I don't know, initially जब ये आई थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, but थोड़ा सा, I'll be very honest with you, थोड़ा सा हल्का सा, let's say 5 to 10%, मुझे इसमें ना कफ सिरप वाइब आने लगा है. हाँ, genuinely speaking, I love the candle. इसकी कैंडल इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर, beautiful candle, crispy, mouth watering, sweet, bright, fresh apple note, which literally smells like Bright Christmas Morning. But body mist form में मुझे ये इतनी impressive नहीं लग रही है. थोड़ी सी मुझे एक medicinal hint, एक cough syrup hint आ रहा है पीछे से जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है. So whenever I'm wearing it these days, I'm not enjoying it that much and that's why it is on number 11. Otherwise, अगर मैं इसको explain करूँ, then I would explain कि this is a very crispy, fresh, bubbly kind of a drink on a snowy day. So you're just enjoying the snow through your window or on your porch and just drinking some fresh, bubbly apple drink. So that's the kind of vibe it has. On number 10, we have Winter Berry Wonder. This again is a fragrance which I went crazy for. मैंने हर
मतलब चाहे वो बॉडी वॉश हो, बॉडी केयर के हर फॉर्म में इसको ख़रीदा था, बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, आई बॉट इट इन एवरीथिंग. I went that crazy for it and it is worth that much. Like it's a really beautiful juicy kind of sweet berry fragrance, literally like berry juice. जो वो canned juice होते हैं ना ट्रॉपिकाना या रियल के, तो अगर कोई बेरी जूस आएगा तो this is what that would smell like and it's a great berry fragrance. अगर अभी भी मुझसे अगर berry fragrances में पूछोगे then definitely it is going to be among my top 2, but on this list this is on number 10 because I have better things in this list to go for and to suggest. On number 9 I have Iced Sugar Plum. This is just another fragrance जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गोरमॉन्ड लिस्ट के हिसाब से again I would say there are better things with Bath and Body Works. बहुत अच्छी है, बहुत comforting, cozy, hug kind of fragrance. और जो इसमें प्लम और टोस्टेड कोकोनट का एक बैलेंस है और एक कुकी लाइक बेस है इस फ्रेग्रेंस का. It smells like a coconut cookie with some plum in it. Oh, it's beautiful. It's very beautiful. Trust me on that. I mean, if it is available, you can have it. मुझे personally ये काफ़ी पसंद है. I do put it on here and there. लेकिन एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम इसके साथ ये लगती है कि प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कोकोनट नोट और वट एवर एक स्लाइट प्लास्टिकीनेस मुझे इसमें फील होती है, जो कि 1-1.5 साल के बाद भी उतना सेटल डाउन नहीं हुई है जितना मैं चाहती. सो प्रॉब्ली इट विल गेट बेटर लेट्स से इन 6 months और समथिंग, बट फॉर नाउ दिस इज ऑन नंबर 9. On number 8 we have Vanilla Bean Noel. This has been like a favorite of mine back in the days, लेकिन मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा ना कि नई फ्रेगरेंसेस आई और पुरानी फ्रेगरेंसेस की थोड़ी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है. सो दैट्स वाई नंबर 8 पे है ये. But this is still going strong, still rocking. नए फॉर्मुलेशंस का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो फॉर्मुलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. इससे भी बेटर ये वाला है एंड दिस जस्ट स्मेल्स लाइक टोस्टेड एंड स्मोकी coffee beans with slight sweetness and a lot of warmth to it, and then it has these sparkles in it as well because this is the shimmer mist. This is so beautiful, this is so good. And then I went ahead and bought this one as well. और दोनों ही मुझे पर्सनली दोनों ही बहुत पसंद है. ये वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो बेटर है कंपेयर्ड टू दिस, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अल्कोहल फील ज़्यादा है और इसमें वो चीज़ काफ़ी टोन्ड डाउन है. तो ब्यूटीफुल वनीला फ्रेग्रेंस. अगर आपको एक ट्रू वार्म स्वीट वनीला चाहिए विच विल जस्ट स्मेल लाइक ट्रू वनीला बीन्स, लेयरिंग के लिए चाहिए, किसी भी फ्रेग्रेंस को स्वीट और वार्म बनाने के लिए चाहिए, वनीला को इन्हांस करने के लिए चाहिए, गो इन दिस डायरेक्शन एंड यू विल नॉट गो रॉन्ग विद वनीला बीन नोएल. इट्स जस्ट दैट कि उसको मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए ऑन नंबर 7 वी हैव कोजी बर्बन वनीला. नाउ ऐसा नहीं है कि आई वुड लाइक टू से कि मैं दोनों को ना ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रखना चाहूँगी, बट कोजी बर्बन वनीला का मैं एक आपको बता दूँ, दिस इज़ मोर लाइक नॉट दैट sickly sweet gourmand, but it's a beautiful fuzzy vanilla in here. इसमें बर्बन के नोट्स के साथ एक स्वीट सॉफ्ट कोजी वनीला है और इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्नोफ्लेक्स एंड कैशमीर की स्वीट वुडीनेस और फायरसाइड फ्लरीज की मार्शमेलो का नोट को अगर मिक्स कर दो और उसमें वनीला मिला दो, बर्बन वनीला, then you will get cozy bourbon vanilla. So it's not exactly like any other fragrance. It is a fragrance of its own. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उन दोनों में से या तीनों fragrances में से किसी के भी एक जैसा है. ये अपना ही एक fragrance है, but still it is beautiful. It is more wearable. It is what do I say? Like slightly perfumey take on a warm cozy vanilla fragrance. और जिन लोगों को एकदम true gourmands नहीं पसंद आते हैं वो इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे. एंड दिस अगेन कैन बी अ वेरी ब्यूटिफुल लेयरिंग फ्रेग्रेंस फॉर ऑल योर vanilla based perfumes out there.
do check this one out. Number 6 we have winter candy apple. मेरी बॉटल को देख के सब लोग कहते हैं ये कौन से सन 47 की बॉटल लेके बैठे हो और ये तो आती नहीं है और ये तो हमने कभी देखी नहीं है. But yeah, I bought this bottle back when Bath and Body Works was just launched in India, and I still love this fragrance a lot, and that is why it is on number 6. मैं चाह के भी इसको पीछे नहीं रख पा रही हूँ और नई फ्रेगरेंसेस भी इसको रिप्लेस नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि ब्राइट क्रिसमस मॉर्निंग. उसमें पोटेंशियल था कि वो विंटर कैंडी एप्पल को रिप्लेस कर पाती बट नहीं कर पाई. सो या, on number 6 we have winter candy apple, beautiful hard apple candy fragrance. मेरे लिए पर्सनली शायद इसमें रेड एप्पल्स का नोट mentioned है, बट मेरे लिए it's a green apple but in a very sweet hard candy way, in a very fresh juicy way. It's a beautiful happy fragrance. और मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ है that I need a candle in Vanilla Bean Noel. I love it that much. So this says I'm gonna get a candle for Vanilla Bean Noel. This is so stunning. This is so beautiful. This is like, if you like candy fragrances, if you want a dupe for Kayali's apple fragrance, Eden Juicy Apple by Winter Candy Apple. मुझे नहीं पता नए फॉर्मुलेशंस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कितने लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं. मेरा ये फ्रेगरेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. ये ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे मुझे देता है. मैं इस बात पे टोटली अग्री करती हूँ कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो लॉन्जिविटी और क्वालिटी है वो डेफिनेटली डाउन जा रही है कंपेयर टू द ओल्ड टाइम्स. ओल्ड फॉर्मुलेशंस अच्छे रहते थे, बट आई थिंक द रीज़न फॉर डूइंग दिस इज़ कि लोग ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा तो दोबारा से जल्दी रीपर्चेज करेंगे. सो प्रॉब्ली दैट्स वाई ब्रांड्स डू दैट. बट या, ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस. रीटच करो, जो मर्जी करो, ओन दिस. ओके, सो आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरे पास 12 नहीं 13 फ्रेगरेंसेस हैं, तो वो रेटिंग सब गलत हो गई. सो यू जस्ट करेक्ट इट इन योर हेड. I can't reshoot this video again. I'm running out of battery, like almost running out of battery. So on number 6 we have Strawberry Pound Cake. Beautiful fragrance, hardly ever comes back. We want this back. This is amazing. This is beautiful. It literally smells like a strawberry shortcake. Sweet है, dense है, लेकिन फिर भी strawberry से इसमें perfect brightness add होती है. You literally would just smell like a cake if you put this on. You'll smell like sweet strawberries and a strawberry cake. Yeah, no complication. It literally just smells like strawberry pound cake. And मेरे वाला जो बॉटल है वो लॉन्ग लास्टिंग भी है. लोग बोल रहे थे कि स्ट्रॉबेरी पाउंड केक 2 ही घंटे चलता है. मेरा आराम से 5 से 6 घंटे चलता है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी वेयर किया है. आई हैव यूज्ड इट टिल हियर. काफ़ी यूज़ किया है मैंने इसको. सो आई हैव बीन गोइंग फॉर दिस बैक टू बैक लास्ट ईयर इफ आई रिमेंबर, and then there were more Gaumons that launched and I got distracted, so I moved on to those. लेकिन फिर भी I would still like to say that it's a really beautiful fragrance. But we have the next fragrance coming. We have a better option. So this is on number 6, but on number 5 I have Strawberry Snowflakes. अब Strawberry Snowflakes मेरे personal opinion में एक better, lighter, मोर वेयरेबल वर्जन है स्ट्रॉबेरी पाउंड केक का. स्ट्रॉबेरी पाउंड केक की स्वीटनेस थोड़ी सी सिकली स्वीट की तरफ जाती है. वो बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत शार्प स्वीट फ्रेगरेंस है. तो उसमें जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो काफ़ी ब्राइट और शार्प है और उसकी स्वीटनेस बहुत ओवर द टॉप है. तो जिनको बहुत स्वीट फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं आती हैं उनके लिए वो हेडेक इंड्यूसिंग हो सकती है. आई ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड इट. Almost. So Strawberry Snowflakes in that case, it's a beautiful fragrance. It's a bakery-like fragrance but still in a light and a fluffy way. Strawberry Snowflakes is actually a dessert. मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी स्क्रीन पे. तो अगर आप उसको इमेजिन करो फिर इसको स्मेल करो, परफेक्ट cookie-like, like a strawberry cookie-like fragrance, and that too a cold cookie, not a warm cookie out of the oven. No. It's a cold cookie. It's like light and bright. और ये ऐसी स्ट्रॉबेरी फ्रेगरेंस है और ऐसी बेकरी लाइक फ्रेगरेंस है जो कि गोमॉन भी है
लेकिन इसको पूरा साल लगाया जा सकता है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. आई जस्ट लव इट. आई लव इट टू द कोर. सो अगर स्ट्रॉबेरी पाउंड केक पे मिस आउट कर गए हो, डोंट क्राई अबाउट इट. You still have strawberry snowflakes and better grab this. You will like it more than that. एक summer gourmand भी है इस लिस्ट में. On number 4 we have summer melody. आजकल वापस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, शायद दोबारा आ जाए, पता नहीं. I can't promise that. लेकिन but it is a beautiful sweet honey melon fragrance. honey dew melon होता है ना, उसके जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है. लिटरली लाइक हनी ड्यू मेलन विद अ लॉट ऑफ शुगर स्प्रिंकल्ड ऑन इट. इट्स अ स्वीट समर जूसी माउथ वाटरिंग मेलनी फ्रेग्रेंस. सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑन नंबर 4. पीछे की रेटिंग और नंबर्स तो सारे मैसअप हो गए. आई एम रियली ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि अब मैं इसको सब स्क्रू अप ना करूँ. सो या ब्यूटिफुल. अगर वापस आ जाती है ना, जिनके पास है उन्हें ये बात पता होगी दैट दिस इज एन अमेजिंग समर फ्रेग्रेंस. इससे बेटर समर गोरमॉन्ड नहीं हो सकता. ट्रस्ट मी ऑन दिस. बॉडी मिस्ट्स में दिस इज द बेस्ट समर गोरमॉन्ड आई हैव. देन मूविंग ऑन टू नंबर 3. मतलब नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में ना मैंने इतना ज़्यादा टॉगल किया है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे डिसाइड करूँ. बट येस, लेट्स टॉक अबाउट पेस्टल स्काइज ऑन नंबर 3. वो जो नंबर 2 पे है, मैं कभी उसको नंबर 3 पे रख रही थी, इसको नंबर 2 पे रख रही थी, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी डिसाइड करने में. सो दिस इज़ अ very beautiful sponge sugar toasted coconut fragrance. It is on the warm side but it's on a fluffy airy side. और ये एक warm toasted coconut जैसे वो होता है ना खोपरा को अगर ग्रेट करके और आपने किसी पैन में टोस्ट कर लिया तो कैसी टोस्टी सी फ्रेग्रेंस घर में हो जाएगी ना कोकोनट की. तो उस तरह की फ्रेग्रेंस है इसकी विद फ्लफी शुगरीनेस इन इट. तो पेस्टल स्काइज इसका नाम एकदम परफेक्ट है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रोमांटिक स्वीट एनिमे काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. यू स्मेल दिस एंड यू गेट टेलीपोर्टेड टू एन एनिमे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. बहुत ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस है. ये भी आई थिंक आजकल मैंने तो इसको वापस आते नहीं देखा है. और मुझे ना ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की भी ये बात ये अच्छी नहीं लग रही है. पहले तो ये प्रॉब्लम सिर्फ विक्टोरिया सीक्रेट के साथ थी, अब बाथ एंड बॉडी वर्क्स भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है. एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट बाथ एंड बॉडी वर्क्स, लेट्स नॉट ब्लेम देम. द थिंग इज अपैरल ग्रुप जो इसको मैनेज कर रहा है ना, ये उनके पार्ट पे कमी है कि वो उन कलेक्शंस को कभी वापस ही नहीं ला रहे हैं, रीस्टॉक नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो लेट्स ब्लेम देम फॉर दैट. So Pastel Skies is a beautiful cozy time, Netflix and chill time, making love time fragrance in my personal opinion. बहुत ही ज़्यादा easy on the senses, very attractive, very luring your guy in kind of fragrance है ये. And he'll just keep on sniffing you because this develops very beautifully on the skin. And moving on to number 2, and I was wearing this fragrance yesterday, and that is Whipped Berry Meringue. Just another fragrance. ये ब्रंच कलेक्शन में आया था. कुछ टाइम तक वापस आती रही ये फ्रेग्रेंस, बट अभी वापस नहीं आती है और दैट्स अ सैड थिंग. क्योंकि मैं भी अगर इसको यूज़ करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार मेरी फ्रेग्रेंस ख़त्म हो जाएगी, बट what to do? अगर कुछ पसंद है तो पसंद है. So Whipped Berry Meringue is a very beautiful berry fragrance. और वो whipped meringue का नोट इसमें है. Obviously how meringue is made, it's made with I think sugar and egg when it's beaten together. इसमें एक बहुत ही strong pastry like feel है. Again berries की freshness है, लेकिन एक पेस्ट्री लाइक और एक whipped cream kind of feel है इसमें, which is just so beautiful. थोड़ी सी एक let's say 5% इसमें शैम्पूइनेस है in the background, कंडीशनर वाली. जैसे यारा में है ना एक वो कंडीशनर वाला फील, तो उसका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसका बहुत थोड़ा सा वो भी सेटल डाउन हो जाता है स्प्रे करने के लाइक 20-30 मिनट में ना वो सेटल डाउन हो जाता है. ये बहुत ब्यूटीफुल बेरी पेस्ट्री या फ्रूट पेस्ट्री जैसा स्मेल करने लगती है, बट इन अ वेरी लाइट वे. ये ऐसी गोमॉन्ड फ्रेग्रेंस है जिसको ऑल ईयर राउंड कैरी किया जा सकता है. और मैं इसको कल ही लगा के गई थी वॉक पे एंड आई वाज स्मेलिंग so damn good. So yeah, so that is why it is on number 2, because I still love it a
lot. And the number one spot, I have kept it for a true gourmand, since this is a gourmand list, and that is chocolate covered cherry. A lot of you are going to be jealous of me for having this fragrance, but what do? I can't help it. इसमें rich milk chocolate है. It is just so damn good. I think last week I was wearing it in combination to Zara ka cherry smoothie, and they both were smelling just so good together. मैं हमेशा आपको बोलती थी कि ये बहुत सिंथेटिक है. ये 2 साल बाद ये भी ठीक हो गया था, और वो 2 साल का मैसरेशन लगा इसको, and now this is a beautiful fragrance right from the starting till the end. It just smells like a chocolate truffle cake with a lot of cherries on it, like fresh cherries drizzled on it. और अंदर भी उसमें जैसे वो केक के अंदर भी जैसे चेरीज डाल दी हों, और ऊपर से भी चेरीज डाल दी हों, और वो फ्रेश juicy sweet cherries with truffle chocolate icing. Oh my god, my mouth is watering right now, and my mouth waters every time I sniff this or put this on. So this is still my most favorite gourmand from Bath and Body Works. मुझे पता है, honestly I genuinely want more gourmands. वही वाला कलेक्शन घुमा के मिड सीजन सेल, सेमी एनुअल सेल, पिछले 2 साल से हम वही कलेक्शन देख रहे हैं. वही स्ट्रॉबेरी स्नोफ्लेक्स, आइस्ड शुगर प्लम, ब्राइट क्रिसमस मॉर्निंग, द सेम वेरी थिंग्स कमिंग बैक टू बैक to us, and nothing new has been introduced. Tropodelic, I would like to say I tried it in the stores. I tried the perfume this time, not the body mist, so I was like I would go for the highest concentration. It's nice, it's good. It is a sweet, mouth-watering floral fragrance जो कि ड्राई डाउन में जाते जाते काफ़ी परफ्यूमी हो जाती है, और काफ़ी एक डिज़ाइनर परफ्यूम जैसा स्मेल करती है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल परफ्यूमी स्वीट फ्लोरल, जिनको उस डायरेक्शन में जाना हो. लेकिन आई डिड नॉट फील लाइक पिकिंग अप एनीथिंग दिस टाइम. मैं स्टोर गई भी थी, मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, फॉलो मी. इतनी ज़्यादा एक्टिव तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हियर एंड देयर में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आई कीप ऑन ड्रॉपिंग, बिकॉज यहाँ तो कोई स्कोप नहीं है स्टोरीज़ का. फॉलो मी देयर, ओके? सो दैट यू नो what stores I'm visiting, what perfumes I'm trying. I keep on updating on that, what is that I'm buying new, what packages I've received. तो वो सब मैं वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ. तो Tropodelic मुझे उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी. मुझे नहीं लगा कि दैट आई मस्ट हैव दिस इन माई कलेक्शन. आई कैन टोटली डू विदाउट इट, और जेन्युइनली मेरा कोई फ्लोरल्स की तरफ इतना आई डोंट लीन टूवर्ड्स देम दैट मच. तो मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उतना, इस वजह से भी आई डिड नॉट पिक इट अप. रेस्ट ऑफ द न्यू लॉन्चेस, एक तो न्यू लॉन्चेस तो वो है ही नहीं. बटरफ्लाई को इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है इस बार. आई डोंट लाइक बटरफ्लाई. मैंने अपना बटरफ्लाई डीक्लटर कर दिया था लास्ट टाइम मैंने बॉट इट. सो यप, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप यू एंजॉयड दिस रेटिंग थिंग ऑफ गोर्मॉन्स. थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मिस्ट्स को काउंट करने में और उनको स्टार्टिंग में रेट करने में, बट आई नो you get it, you get the idea of the video. So yeah, if you're still here watching me and liking me, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. I love you for the support, and I love that you're always here for me, and that you always comment whether I could reply or not. And I am sending a lot of love your way, and I am thankful and really, really grateful to have you guys in my community. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.